खड़ोते खिन माहे, जिन स्यों लगा हेत। हथ मरोड़े तन कबे, सियाहो आसेत। जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। से भादों नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेत। से भादों नरक न पाइए, गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानी योग जुगो जुग टल जबर छत्र तखत दे मालिक धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो, जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी गोद अंदर जुड़ बैठ जीवन दियां अमूलक घड़ियां वेश कीमती सवास सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। भाद्रों दे महीने दा उपदेश जो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने माझ राग अंदर बख्शिश किया है। 12 महा माझ महला पंजवां दे सरलेख हेठ सतगुरु जी का उच्चारण किया होया ये 7वां शब्द है। इत्थों तक देसी 12 महीनों विचों 6 महीने पूरे हो जाते ने। देसी महीने चेत तो लैके फग्गण तक 12 महीनों विचों ये भादों का महीना 6वां महीना है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने ये उपदेश क्यों बख्शिश किया है? क्योंकि मनुखी मन का साडा सुभाव है, जदों कोई मनुख नूं लाभ होवे, कोई बहुत बेनीफिट होवे, ये बहुत खुश होवे, तदों दा क्रेडिट जिहड़ा है वो बंदा अपने आप नूं दिंदा कि मैं बहुत मेहनत की, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी स्टडी की, फिर मैनूं ये सब कुछ प्राप्त होया। और जदों मनुख नूं किसी काम में असफलता मिले, उन्होंने लाभ ना होवे, उहदा नुकसान होवे, वो खुश ना होवे, बहुत दुखी होवे, तदों मनुखी मन का सुभाव है वो किसी दूसरे विच दोष कढ़दा है। इत्थों तक संसार दे लोग दूजियां विच दोष कढ़दे कढ़दे दिनां विच दोष कढ़न लग पे, महीनिਆਂ विच दोष कढ़न लग पे। ये गल लोग कहन लग पे कि महीना चंगा नहीं है, अज दिन चंगा नहीं है।
ये महीना माड़ा है, फलाना दिन चंगा है, फलाना दिन माड़ा है। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਦਿਨ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਮੁਹੂਰਤ ਸਭ ਭਲੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਬਨਸਪਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਜ਼, ਨਫੀਰੀਆਂ, ਢੋਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਜ਼ ਵੀ, ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੜਖੜਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢੋਲ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਕਾ ਗੱਡ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ, ਘਰ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਥਾਲ, ਬਰਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਜੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਕਾ ਗੱਡ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਰੋਵੇ ਦਿਨਸਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਵੇ ਦਿਨਸਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਬਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਦੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਦਰੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ।
ਇਹਦਾ अर्थ है भा दोए। भाव घड़ी घंटा पहला मौसम किसी होर तरह का है, 2-4 घंटिया बाद फिर मौसम बदल जाता, कदे बारिश आ जाएगी, कदे बहुत तरवके वाली गर्मी पैदा होएगी, ये विच घबराहट पैदा होंदी है। जिहड़ा मौसम स्थिर ना रहे, दो भाव वाला होवे, दुबदा वाला होवे, कदे किसी तरह का है, किसी इलाके विच मीह पै रहा, दूजे पासे जाओ तुहानूं धुप नज़र आएगी। इस तरह महाराज जी ने बचन कहे, भाई जिहदे अंदर दुबदा है, जिहदे अंदर भरम है, वो बंदा कदे सुखी नहीं हो सकता। जिहड़ा कदे रब नूं मन्नण लग पैंदा, कदे हट जांदा है, कदे उहदे मन दे अंदर है कि पाठ कर लां, कदे फिर छड्ड दिंदा है, कदे रब उत्ते विश्वास आउंदा है, कदे नहीं आउंदा, कदे जिथे कोई दसदा है उस जगह वल तुर पैंदा। इस तरह दूजा हेत है, रब दे उत्ते एक विश्वास नहीं है, अकाल पुरख परमात्मा उत्ते भरोसा, दृढ़ता, विश्वास नहीं, दुबदा दे अंदर भा दोए दे अंदर जिउंदा है, तां वो भरम उसनूं सदा ही दुखी करदा रहिंदा। कोई भी साध संगत दो चीज़ां जिहड़ियां ने, एक चीज़ दियां दो टुकड़े कर लो तुसीं, वो कदे भी रास नहीं आउंदे। फलीभूत वो चीज़ हुंदी जिहड़ी एक होवे, पूरी सबूती होवे। इत्थों तक किसी कणक दे दाणे दे दो टोटे करके बीज दिओ, वो कदे नहीं उगेगा। अज के शब्द के अंदर महाराज जी ने पहला भरम की गल की, फिर सीधी सतगुरु जी मौत की गल करन लग पे कि जित दिन दे बिन ससी तित किल बिल कह सन प्रेत। इसका भाव अर्थ है कि जे तां तू स्थिर एक रूप विच रवे, तेरे अंदर एक अटल पूर्ण विश्वास बन जाए, फिर तां तेरा जीवन है। जे द्वैश विच है, दुबदा विच है, दो टोटियां विच है, तां फिर भाई मौत है। जे दाणा साबत बीज दिओ तां वो उगदा है, उहनूं फल लगदे ने, वो दाणा फलीभूत हुंदा है। जे उहदे टोटे हो जाण फिर वो दाणा गल जांदा, उसकी मौत है। अंब की गिटक जे साबती बीज दिती जाए तो साध संगत उग पैंदी है। जे उहदे 2-3 टोटे करके बीज दिओ फिर वो उगेगी नहीं, वो गल जाएगी मिट्टी अंदर। इस तरह महाराज ने बचन कहे, जिवें भाई भादों के महीने के अंदर लोगों को मौसम स्थिर नहीं लगता, घबराहट होंदी है, कदे गर्मी है, कदे थोड़ी दूर तक मीह पै रहा, मौसम थोड़े थोड़े समय बाद बदलता रहिंदा है। ये मौसम लोगों को बीमार कर दिंदा है, क्योंकि गर्मी ते सर्दी एकदम बदलती है। बहुत धुप विचों कोई गया, अद्धे किलोमीटर ते बहुत मीह पै रहा, उस उत्ते बारिश पै जाती है, फिर वो मीह पैण नाल लोग बीमार होंदे, दुखी होंदे। जिस तरह ये भादों का मौसम दुखी करता है, इदां महाराज ने कहा मनुख के मन के अंदर पैदा हुई दुबदा भी उन्होंने दुखी कर दी। एक अकाल पुरख रब ते विश्वास नहीं है, वो दुबदा उसनूं बहुत दुख दिंदी है, उसका जीवन फलीभूत नहीं हुंदा, वो दुबदा दे अंदर दुखी हुंदा रहिंदा है। सतगुर सच्चे पातशाह ने बचन कहे, लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, बाहरों भावें वो लखां तरह के शिंगार पैदा करे, जिहड़ी पत्नी अपने पति तो विछड़ जाए, भाव उहदे अंदर दुबदा होवे, द्वैश होवे, उहदा शिंगार भी उहनूं शोभा नहीं दवांदा, उहदा शिंगार भी उहनूं दुख दिंदा है, उहदा कीता होया शिंगार भी उहनूं बदनामी दवाउंदा है। इस तरह बाहरों किते हुए पाठ पूजा जप तप जे अंदर विश्वास ना होवे, वो चीज़ां भी इहनूं सुख नहीं दिंदियां। तुसीं हैरान होवोगे, पूरी दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा जिहड़ा 3 हिस्से लोग धार्मिक ने पूरी दुनिया के अंदर, किसी न किसी धर्म नूं मनदे ने, पूजा पाठ, कोई भावें मूर्ति की पूजा करदा है, कोई जग करदा है, कोई किसी नूं पूजदा है। किसी के घर में चले जाओ, कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह तुहानूं मिलेगा, क्योंकि 3% धरती के लोग धार्मिक ने, पर उहदे विचों साध संगत 70% विचों 70% लोगों विचों 1% लोग भी धर्म विच कामयाब नहीं होंदे। बड़ी सोचण वाली गल है। जिस बिजनेस में 100% चों 1% लोग भी कामयाब ना होण, उहदे बारे विचार करनी चाहिए।
इस बिजनेस विच लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? धर्म के अंदर 70% धरती के लोग धार्मिक ने, कोई ना कोई चिन्ह हर बंदे के घर में है, भावें किसी की पूजा कर रहे हैं, पर वो अंदर लोग कामयाब क्यों नहीं? वो एको ही रीजन है, वो भरम विच जिउंदे हन, भुलेखे विच रहिंदे हन, दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, एक रब उत्ते दृढ़ता विश्वास नहीं बनया, इसलिए वो बार बार रस्ते बदलते रहिंदे ने। रस्ते बदलने वाले लोग कदे मंजिल ते नहीं पहुँचते, वो हमेशा दुखी हुंदे हैं। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी ने कहा, भाई पहला भरम मन विचों दूर कर। हुण भरम की है? भादों भरम भुलानी है। भरम किहनूं कहिंदे ने? जो चीज़ तुहानूं दिस रही है वो असलीयत ना होवे, तुहानूं बाद विच पता लगे तो कुछ होर ही सी। सतगुरु बाणी अंदर उदाहरण दिती, कहते भाई हिरन बहुत तेज भजदा है, दूरों देख के पानी चमक रहा है, पानी चमक रहा है, जदों विचारा उहदे कोल पहुँचदा तो रेता निकलदा। रेगिस्तान के अंदर वो बेचारा भज भज के थक जाता है, जदों चमकदी रेत कोल जांदा है फिर कोल जाके पता लगता ये तो रेत है, पानी नहीं है। इस तरह का तुसी भी रिफ्लैक्शन कई बार वेखोगे रोड उत्ते, सड़क ते जांदे आ तुहानूं अद्धा मील दूर नज़र आउंदा जिवें पानी खड़ा है, पर जदों कोल जाओगे वो धुप नाल सड़क चमकदी है, वो पानी नहीं हुंदा। इस तरह महाराज ने कहा भरम ये है, संसार के लोग समझण आही सुख है, आईओ सुख है, जदों उहदे कोल पहुंचण उहदे विच सुख ही नहीं मिलता। मन अंदर भरम है, पुत्र धीआं हो जाण बस फिर सुखी असीं, घर बन जाए फिर सुखी है, बच्चे विआह दिते फिर तो हुण सुखी हो जाना, तो विआउण तो बाद भी सुखी नहीं है, घर बनाउण तो बाद भी सुखी नहीं है। जदों उस मंजिल ते पहुंचते ने दुख उत्थों दे उत्थे फिर खड़े ने। जिहड़े दुख 20 साल पहला सन, वो 20 साल का सफ़र पूरा करन तो बाद भी वही चिंता है, वही वो दुख ने, वही वो परेशानियां ने। इसनूं हजूर ने कहा भरम। सतगुरु बाणी अंदर बचन के कहते हैं, एक राजा तखत ते बैठिया बैठिया उन्होंने नींद आ गई, क्योंकि उन्होंने हवा चल रहे सन, उहदे अहलकार उहदे नौकरानियां, गर्मी का मौसम सी, ठंडी हवा उन्होंने लग रही सी, तब बैठिया बैठिया उन्होंने नींद आ गई। नींद के अंदर उस राजे नूं सुपना आ गया, सुपने में ऐं लगा वो भिखारी बन गया, मंग रहा थां थां ते। तो जदों ठूठा लैके मंग रहा है, लोग उसनूं मंगिया भी भीख नहीं दे रहे, कोई उसनूं माड़ा मोटा तरस करके एक पैसा दे दिंदा है, तो वह भिखारी एक पैसे ले एक रोटी ले तरस रहा है। अचानक उन्होंने ठोकर बजी, बहुत जोर नाल डिगया। जदों वो भिखारी डिगया तो वो राजे का सुपना खुल गया। हुण वो हैरान होकर सोचता है कि एक पल पहला मैं भिखारी सी, अपने बारे विचार करता मैं राजा हाँ कि मैं भिखारी सी। सुपना टुटन तो बाद पता लगा मैं भिखारी नहीं, मैं राजा हाँ, पर उसके कपड़े चेहरा सब पसीने नाल भिजया सी। इस तरह महाराज ने बचन कहा, भाई ये संसार सुपना है, ਇਹਦੇ अंदर बंदा मंगदा ही रहिंदा सारी उम्र, आ कुछ मिल जाए, आ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए। जिदन संसार वालों ठोकर वजदी है उदन सुपना टुटदा है, नहीं मैं तो कुछ होर करना आया सी, ये तो सब कुछ झूठ है जो कुछ मंगे। सतगुरु बचन कहा, भगत रविदास महाराज जी का शब्द है, वो कहते ने नरपत एक सिंघासन सोया, राजा सौ गया सिंघासन ते, सुपने बया भिखारी, अष्ट राज विशरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। किवें उन्होंने राज विछड़ के दुख मिलिया। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। भरम की है, जो मन रहे हैं वो असलियत नहीं है, रियलिटी नहीं है। इसलिए सतगुर सच्चे पातशाह ने कहा, भाई भरम विच लोग दुखी होंदे आ, ये भरम ना मन विच लिया कि अज दिन नहीं चंगा, महीना नहीं चंगा, फलाने ने तेरा काम बिगाड़ दिता। नहीं भाई, अकाल पुरख रब का नाम जप फिर सब भला है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने समझाया
कहते भाई इस भरम तो जे मुक्त होना चाहुंदा फिर तेनू गुरु कोल जाना पैना, गुरु का नाम जपना पैना। उन्नी देर तेरा मन डोलदा रहेगा जिन्नी देर भरम विच है। भाई गुरदास साहब जी ने बचन कहा, सोने विच जिन्नी देर महल होवे ना, वो सुनिहार की कुठाली में जदों का कहट ਵਧਾਉਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ उन्नी देर कुठाली 'ਚ सोना घुमदा रहिंदा। जिन्नी देर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महल है, जदों शुद्ध हो जाए सोना टिक जाता है। ये निशानी है। फिर वो ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਨਿਹਾਰ बंद कर ਦਿੰਦਾ। इदां महाराज ने कहा जिन्नी देर भरम है भाई तो उन्नी देर दुखी हुंदा रहेगा। भरम दूर काहदे नाल होएगा? अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नाम नाल। हजूर कहते डिगन डोला तौलो जो मन के भरम। जिन्नी देर मन दे भरम ने भाई उन्नी देर तू डोल रहा। भरम की है? जो परायो सोई अपना। जो पराया है वो तेनू अपना लग रहा है। जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना। कहो गोसाई मिलिए के जो विवर्जित तिस स्यों ने। रब किवें मिले तैनू, नाम किवें जपे जितों गुरु ने विवर्जित किया है वही तू कर रहा। बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ पुठा बुनना। जिहड़े हथ तुरने वो छड्ड के तू दूजे हथ तुर रहे, सीधा छड्ड के पुठा बुन रहा। अकाल पुरख वाहिगुरु ने जो तेनू जीवन दिता उन्होंने तू समझिया नहीं। असल में इस जीवन विचों एक जीवन होर मिलना सी। जिवें पहला मैं बेनती की, सुख का संबंध बाहर नाल नहीं है, वो तुहाडे मन नाल अंदर का संबंध है। बहुत लोग घट साधन होंदे भी सुखी क्यों ने? जे परिवार विच खुशी है, मन खुश है, फिर थोड़े साधना विच भी तुसी खुश हो। जे अंदरों मन उदास है तो बहुते साधन भी तुहानू सुखी नहीं कर सकते। अब पिछले साल लॉकडाउन में बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर सुसाइड कर गया। उहदे कोल अरबां खरबां की जायदाद है, पर साध संगत वो बाहरली जायदाद बाहरले साधन उन्होंने सुखी नहीं कर सकते जिन्नी देर सुख अंदरों नहीं पैदा होंदा। सतगुर सच्चे पातशाह ने बचन कहे, जीवनों में जीवन पाया। हे भाई आ जीवन तेनू रब ने देता है, इहदे विचों एक जीवन होर मिलना है जिहड़ा गुरु ने देना है। जदों गुरु कोल आओगे फिर सतगुरु ये समझाउणगे, भाई किहड़ी चीज़ है जो तू नाल लैके आया, कदे वास्ते तड़फ रहे। इस संसार में पदार्थ तेनू वरतन वास्ते दिते ने। जिन्ने तू वरत रहा ठीक है, जिन्ने विच रह जाण वो भी ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਕੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਗਾ। ताइयों महाराज ने कहा, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना। शरीर तो अगे अंदर महाराज ने बख्शिश किया है, उन्होंने सुखी करने वास्ते अकाल पुरख का नाम जप, फिर तेरे मन के भरम दूर होणगे। एक साधु जंगल विच रहिंदा, उन्हें कुल्ली पाई है। उस जंगल विच एक गरीब लकड़हारा आउंदा है, रोज़ घंटियां वधी बेचारा लकड़ां वढदा है। उहदे कपड़े भी फटे पुराने ने, फिर लकड़ां दी भंड वढ के लै जांदा है, वेचदा, अगले दिन फिर आ जांदा है। वो साधु रोज़ वेखदा रहा, कई सालां तो इस तरह चल रहा सी। वो साधु दी कुल्ली दे लागों गुजर के जांदा है। कहते ने उस फकीर नूं एक दिन तरस आया, किन्ने साल गुजर गए, किन्ना अनमोल जीवन है। ये विचारा रोज़ सवेरे जांदा है, शामां तक लकड़ां वढ के सिर ते भार चुक के लिआउंदा है, अगले दिन फिर वढण आ जांदा है। इन्ने सालां विच इहदे हालात नहीं बदले। इन्ने सालां विच इस बंदे दे हालात बदले नहीं। होवे ना इसदा भला करना चाहिए। वो फकीर ने उस गरीब बंदे नूं रोक लिया,
उस लकड़हारे नूं रोक के फकीर कहंदा है तू इत्थों ही मुड़ आउंदा है, थोड़ा अगे जा भाई। उन्होंने कहा बाबा अगे की है? कहन लगा भाई अगे सुख है जिहड़ा तैनूं इन्नियां सालां विच नहीं मिलिया वो मिल सकदा है, थोड़ा अगे जा, तू तो इत्थे रुक गया। भाव तू तो रोज सवेरे घर तो काम ते काम तो घर आ जाना, तेरे हालात तैनूं सुख मिले। तो उस गरीब सज्जन ने मन के अंदर सोचा साधु फकीर है, किन्ने सालों तो इत्थे दी कुल्ली में वेखी है, भगती वाला है, इहदा वचन मनना चाहिए, शायद मैनूं सुख मिल जाए। अज उन्हें लकड़ां वड्डियां नहीं, अगे निकल गया, अगे तो अगे तुरदा रहा। जदों अद्धा 1.5 मील अगे चला गया तो बड़ा हैरान होया, अज उन्होंने लकड़ बड़ी कीमती मिली है। अगे तो आम विहार दीयां लकड़ां वड्ड के लै जांदा है, अज उन्होंने चील दी लकड़ मिल गई। उन्हें वो लकड़ां वड्ड लईयां, बाजार विच आके बेचियां, थोड़े पैसे वध मिल गए। मन अंदर विश्वास आ गया कि फकीर करामती है, इनू पता सी कि अगे लकड़ां कीमती ने, अज पैसे वध मिले ने, मैं तो अगे इन्नियां सालां विच 10-20 सालां च आया ही नहीं इधर। वो फकीर फिर मिलिया थोड़े दिनों बाद, उन्हें कहा भाई तू फिर अजे उत्थे दा उत्थे है, थोड़ा होर अगे जा, तैनूं कहा सी अगे जा। उन्हें उस फकीर के बचनों को फिर उस तरह मन के होर अगे चला गया। कहते हैं एक जंगल का पासा लंघिया, बड़ा हैरान होया, हुण तां चंदन दीयां लकड़ां दिसण लग पई। चंदन दे विचों दरखत मिले, उन्हें वड्ड लै, रोज लिया के वड्ड के बाजार बेचदा, लखां रुपया उसने कमा लिया। वो जिवें जिवें अगे वढ़दा गया, चंदन के दरखत वेच के वो तां अमीर हो गया। हुण उसदे बाहरले हालात बदल गए, अमीर हो गया, घर भी बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। हुण एक अद्धा नौकर भी नाल लिआउंदा है। ते साध संगत जदों दा कारोबार वध गया, 5-7 साल गुजर गए, फकीर बाजार वाल आया तो उसका बहुत वड्डा कारोबार, उन्हें नौकर चाकर रखे ने, वड्डे ढाल लकड़ दे लाए ने। पहलां वो किसी दे ढाल ते लकड़ां वेचदा सी, हुण लोकी उहदे ढाल ते वेचदे ने। जदों फकीर ने वेख्या, वो शाहूकार सज्जन ने भी वेख्या, उन्हें कहा इसे फकीर के बचना करके मैनू चंदन की लकड़ लभी, मैं करोड़ांपति हो गया। उठ के अदब सत्कार किया, महापुरुषो आओ चरण पाओ जल पानी छको, तुहाडे बचना करके तो मैं अमीर होया, तुहाडे करके तो अज मैं एडा वड्डा शाहूकार बन गया। तुसीं कहा सी अगे जा, अगे फिर मैनू चंदन दीयां लकड़ां दा जंगल मिल गया, मैं तो चंदन वेच वेच के करोड़ांपति हो गया। आ सब कारोबार तुहाडे बचना करके। तो फकीर ने मुस्कुरा के कहा भाई बाहरों तो सब कुछ बदल गया, पर तेरे अंदर दे हालात अजे मैनू बदले नज़र नहीं आते। तू अंदरों अज भी उन्ना ही दुखी है जिन्ना 20 साल पहला परिवार तो दुखी सी। अज बच्चे वड्डे हो गए ने, दुख तेरे फिर उस तरह वध गए ने, तेरे दुख फिर उस तरह खड़े ने, मैनू तो अंदरों सुखी नहीं लगता। तो साध संगत वो अखां भर के रो पिया, क्योंकि हर बंदा अंदरों दुखी है, बस बाहरों छेड़न की देर है। सतगुर सच्चे पातशाह ने बचन कहे, दुख कियां पंडां खुलियां सुख ना निकलियो कोए। तुहानूं लोग बाहरों सुखी लगते ने, इस तरह ने जिवें भरिया होया फोड़ा होवे, बस छेड़न की देर है, फुट पैणगे। हर बंदे विच कोई ना कोई दुख है, कोई घर परिवार वालों, कोई किसी वालों। जदों शाहूकार नूं सेठ ने क्या रो पिया, उन्हें कहा जी पैसा तो बहुत आ गया, पर मैं हुण बच्चों वालों दुखी हाँ, मेरे पुत नौहां इस तरह विगाड़न लग पे ने, पैसा तो बहुत है। जदों शाहूकार रो पिया तो फकीर ने कहा भाई मैं तेनों कहा सी अगे जा, तू तो बहुत नेड़े मुड़ आया। उन्हें कहा बाबा अगे की है? जिथों तक मैं गया उत्थे चंदन का जंगल सी, उस तो अगे तो बहुत डूंगी खाई है, जां फिर गां उच्चा पहाड़ है, तो मैं अगे जाके की करना? वो फकीर ने कहा भाई तू बाहरों मुड़ आया, मैं अगे जाण नूं कहा सी, इस शरीर की यात्रा, कम की यात्रा, संसार तो अगे वध, तैनूं निरंकार मिलेगा। तू सिर्फ पदार्थां तक रह गया, पदार्थों तो अगे परमेश्वर है। अकाल पुरख रब दा नाम जप के प्रभु नूं जपण लग जाएगा, तेरे दुख कटने शुरू हो जाएंगे, तेरा जीवन बदल जाएगा, अगे सुख है। तो साध संगत सतगुर सच्चे पातशाह ने यो समझाया भाई भिखारी बन के पदार्थ ही ना मंगी जाए सारी उम्र। पदार्थ तेरी लोड़ है, पुत्तां धीआं वास्ते तैनूं चाहिए ने,
पर हर रोज़ इन्हां पदार्थां विच रहिंदिआं मंगिया कर सतनाम श्री वाहिगुरू। रब दा नाम मंग, वो तैनूं सुखी कर देणगे। नहीं तो भाई इस भरम विच उम्र लंघ जाएगी। तो अज महाराज ने बचन कहा, ये तेरे शंगार बाहरले साधन किसे कम नहीं होणगे। जिदण आ शरीर छड्डेगा उदण जिन्हां नाल तेरा बहुत हेत प्यार ने सी, तैनूं अपना कहिंदे सन, उहिओ तेरे इस शरीर तो डरन लग जाणगे। उहिओ घर परिवार पुत्र धीआं रिश्तेदार कहणगे छेती लै जाओ, ये शरीर हुण घर रखण दे योग नहीं। पातशाह ने सीधे शब्दां विच कहा, जित दिन दे बिन ससी तित विले कैसन प्रेत। भाई इहो शरीर तेरा घर विच भी नहीं कोई रखेगा। जे एक दो दिन रुकना पै जाए तो घरों चुक के जमा करा देणगे किते। इसे शरीर तो डरनगे, इनू प्रेत कहणगे, ते फिर तेरी हालत की होएगी। हजूर कहंदे पकड़ चलाइन दूत जम, किसे ना देनी भेत। अंदर दी जिद आत्मा नूं वो जमदूत किथे लै गए, किसे नूं भेत नहीं दिंदे। छड्ड खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। जिन्हां नाल बहुत हेत स्नेह प्यार सी, तैनूं अपना ते तूं उन्हां नूं अपना कहंदा सी, वो तैनूं शमशान तक छड्ड के छेती मुड़ आउणगे। वो तैनूं छेती खड़े खलोते दूरों वेखदे रहणगे, तेरे उस शरीर दे नेड़े भी नहीं जाणगे। भाई वो तैनूं फिर शमशान में छड्ड के मुड़ आउणगे। तेरे कीते कर्मां दा हिसाब तैनूं ही देना पैना है। इसलिए कीते हुए संसार दे इन्हां कर्मां विच अहंकार ना कर। उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम जप। जे तू अंदरों सुख चाहुंदा फिर पदार्थां विच रहिंदे उस परमात्मा नूं जपना पैना। साध संगत रब नूं सब कुछ पाउंदा है, एक अहंकार नहीं पाउंदा। कई बार बंदे नूं भुलेखा रहिंदा है। दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों मालवे गए तो एक बहुत वड्डा चौधरी जिहदे कोल अहलकार रखे हुए सिपाही फौजां, वो उस इलाके का बहुत वड्डा अहलकार सी। वो महाराज नूं मिलण आया। कदे आनंदपुर साहिब वो घोड़े महाराज नूं देण आउंदा सी, वेचण आउंदा सी। अज जदों सतगुर सच्चे पातशाह बारे उन्हें सुनिया, महाराज का घर घाट बाहरी तौर पर आनंदपुर साहिब भी नहीं रहा, पुत्र भी सतगुर जी दे शहीद हो गए, परिवार विछड़ गया। तो अहलकार चौधरी आके महाराज सच्चे पातशाह नूं कहंदा महाराज एक बार मैनूं किते सुनिया घल दिंदे ना, मैं तुहाडे साहिबजादे शहीद नहीं सी होण देणे। मैनूं किते सुनिया घल दे। आ वेखो मेरे कोल 6.5 7 फुट दे उच्चे नौजवान ने, फौजी सिपाही ने, इन्नियां फौजां ने। मैनूं किते एक बार सुनिया घल दे तो महाराज मैं तुहाडा इन्ना नुकसान नहीं सी होण देना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बड़े सहज नाल जवाब दिता, कहते कोई गल नहीं भाई, ये अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म विच सी, जो भाणा वरतना सी वो वरत गया, क्योंकि महाराज उन्होंने टालना चाहते सी। सतगुर जी जानते सन ये बंदा अहंकार विच कह रहा, इनू रब दे घर दी खेड दा पता नहीं। कई बार साध संगत असीं गुरु दा हिसाब किताब भी अपने हिसाब नाल लाउण लग पैंदे। असीं समझ लगते शायद गुरु ने इस तरह नहीं किया, गुरु कोल कमजोरी होएगी तां नहीं होया। गुरु दे कौतक नूं असीं कमजोरी समझण लग पैंदे। ये गुरु दा अपना कौतक है। चोजी प्रीतम श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हों का अपना चोज है। जे वो चाहण तो साध संगत कोई उन्होंने परिवार नूं किवें विछोड़ सकता सी। ये तो उन्होंने हुक्म विच है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कोई गल नहीं डलिया, ये महाराज दे हुक्म विच है, अकाल पुरख दे उहदे भाणे विच है। जदों ने वेख्या महाराज दे सूरवीर योधे नाल भाई दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह, कई सिखां दे पुराने वस्त्र ने फटे हुए ने, पैरां दे जोड़े भी टुटे हुए ने, भुख दे दिनां विचों लंघे ने, शरीर भी कमजोर है। कहना महाराज इन्हां ने कित्थे तुहाडी मदद कर देनी सी, ये तुहाडी मदद कित्थों कर लैंदे, इन्हां दे शरीर तां वेखो महाराज, मेरे जोधे वेखो महाराज किन्ने तकड़े ने।
सतगुर सच्चे पातशाह समझ गए कि ये अंदर अहंकार बहुत वड्डा वध रहा है। ये मेरे सिखां दी बाहरी शरीर की कमजोरी वेख के कह रहे हैं, महाराज इन्होंने कित्थे तुहाडी मदद कर देनी सी। गुरु नूं हंकार नहीं पाउंदा, बाकी सब चीज़ां साध संगत प्रवान हो जांदियां ने। रब नूं एक चीज़ प्रवान नहीं है। उन्होंने महाराज ने बाणी अंदर कहा, हंकार हर जियो अहंकार ना भावे, वेद कूक सुनावे। रब नूं हंकार नहीं चंगा लगता। होर बाहरी तौर पर कई चीज़ां जिन्हां नूं रब माफ़ कर देना। आपां गुरुद्वारे का मंदिर का धार्मिक स्थान का विधान बनाया, इत्थे बंदा बाहरों नशा करके नहीं आ सकता। कोई शराब पीती होवे वो नहीं आ सकता। बाहरों कोई बाहरी नशा कीता उत्ते पाबंदी है भाई, नशा करके गुरुद्वारे मंदिर आना मना है। पर साध संगत ये अंदरूनी नशा है, वो कोई बाहरों ठीक है, वो भी रोकना चाहिए, वो वधिया विधान है। इस तरह धार्मिक स्थान उत्ते कोई बंदा नशा करके नहीं आना चाहिए। पर एक नशा वो है जिहड़ा नज़र नहीं आता सन, वो नशा सिर्फ गुरु नूं दिसदा है। उन्होंने महाराज कहते हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में। मद का अर्थ हुंदा नशा। किसी नूं धन का नशा है, किसी नूं अपना मान हंकार कि मैं बहुत बलशाली हाँ, मैं सोहना बहुत हाँ, मैं अमीर बहुत हाँ। पातशाह कहते भाई गुरु नूं ये भी नशा चंगा नहीं लगता। बाहरी नशा तो बाहरले लोगों की पाबंदी है ना, एक पाबंदी गुरु की है। जे कोई हंकार विच आवे वो गुरु नूं चंगा नहीं लगता। हर जियो अहंकार ना भावे, वेद कूक सुनावे। जदों डल्ले ने कहा, महाराज मेरे को देखो 7-7 फुट के नौजवान सिपाही ने, एक बार सदा तो घल दे, आ तुहाडे कमजोर जै सिपाहियां ने तुहाडी की मदद करनी सी। सतगुरु समझ गए नूं हंकार बहुत है। पातशाह ने कहा, चल फिर तेरे योधे परख ही लैने। कहना, महाराज किवें परख लवोगे, तुसीं उदों तां सद्दिया नहीं। सतगुरू बचन कहा, भाई फिर किसी की मदद करने लई जानां वारनियां पैंदियां ने। मेरे सिख मेरी खातर शहीद होए ने, मेरे सिख पुत्तां तो प्यारे मेरे शहीद होए ने। ते महाराज ने कहा, दस तेरा कोई योधा जिहड़ा तू कहना बहुत बलशाली है, 7-7 फुट दे ने। एक बेनती होर ध्यान नाल समझिओ, गुरु दा सिख नाल वेखो किन्ना प्यार है। पातशाह नूं उन्हें 2 बार पहलां कहा, महाराज मैनू याद कर लेंदे तुहाडे साहिबजादे शहीद नहीं सी होण देणे, मैनू सद लेंदे तुहाडा परिवार दा मैं नुकसान नहीं सी होण देना। साहब बड़े सहज विच कहिंदे रहे, ये करतार दा भाणा है डलिया, कोई गल नहीं। महाराज तुहाडे कमजोर जै सिखां ने की तुहाडी मदद करनी सी, इन्हां दे शरीर तां वेखो महाराज। गुरु ने बर्दाश्त नहीं किया। जदों गल सिख दी इज्जत सन्मान बर्दाश्त नहीं करता। जिहड़ा सिख गुरु नूं प्यार करदा, याद रखियो गुरु भी सिख नूं उहदे नालों चौगुना प्यार करदा। एवें नहीं लिख के दिता, चरण शरण गुर एक पिंडा जाए चल, सतगुर कोट पिंडा आगे होए लेत है। भावनी भगत भाए कोडी अगर भाग रखे, ताहे गुर सर्व निधान दान देत है। ਜਾਂ साहब ने कहा, गुरसिखा अंदर सतगुर वरत। उदों गुरु नूं फिर बोलना पिया। जदों डल्ले ने कहा, महाराज तुहाडे अदने जै सिख कमजोर जै शरीर ने, इन्हां तुहाडी की मदद करनी सी। उदों महाराज तो बर्दाश्त नहीं होया। कहंदे डल्लिया लिया फिर अपने सूरवीर योधे, आ नवी बंदूक किसी ने भेंट की, निशाना ही परख लैने। हुण डल्ला आला दुआला वेखे, उन्हें अपने कई सूरवीर निकट वरती जिन्हां ते विश्वास सी, उन्हां नूं कहा बई गुरु ने निशाना परखना है, कोई हो सकता है? एक नूं कहा, 2 नूं कहा, सब ने पैर पिछे कर लै। नहक्का कौन मरदा? लो जी बंदियां ते कौन निशाना परखदा बंदूक दा? जदों दे योधे पैर पिछे खिंचण लग पे, सतगुरु मुस्कुरा के कहंदे, डलिया तू ते कहंदा सी 7-7 फुट्टे बड़े ताकतवर तेरे कोल योधे ने, ये ते कोई अगे नहीं आ रहा। हुण तू दस, तू भी बड़ा ताकतवर योद्धा है, दस तेरे उत्ते निशाना परख लईए बंदूक का। तो डल्ले ने कहा, महाराज ये भी कोई गल होई, बंदूक का निशाना परखण लई कोई दरखत, कोई जानवर, कोई होर पंछी ते परखिया जा सकता है, महाराज बंदे उत्ते निशाना परखना ये भी कोई गल है? चेहरा उतर गया।
एकदम शिथा ते शर्मिंदा पै गया। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह मुस्कुराए। पातशाह ने कहा, लै फिर जिन्होंने तू कहना ना अदने जै शरीर है, कमजोर जै सिख ने, इन्हीं थोड़ी की मदद करनी सी। लै फिर डलिया हुण तैनूं विखाउने आ, बाहरली ताकत दा अंदर दी ताकत नाल कोई संबंध नहीं। जे अंदरों सुख है तो साध संगत बंदा अंदर गुरु की ताकत है, बाहरों घट ताकत वाला शरीर भी भारी पै जाता है। ये जरूरी नहीं कि बहुत उच्चा लंबा कद चाहिए। इतिहास पढ़ो, 4.25 फुट के करीब 5 फुट तो घट कद है भाई बचित्र सिंह जी का। मैदाने जंग अंदर हाथी नाल जूझ गए। इसलिए बाहरले शरीर का अंदर की ताकत नाल संबंध नहीं, अंदर गुरु की कृपा चाहिए। जदों महाराज ने कहा, लै बई डलिया हुण तैनूं उन्हां सिखां वल दिखाईए जिन्हां नूं कहना कमजोर है, इन्हीं महाराज तुहाडी की मदद करनी सी। सिखो निशाना परखना बंदूक दा, आओ फिर कोई निशाना परखण लई मोहरे होवो। साध संगत जिथों तक आवाज़ सुनी, कोई सिख दमाला सजाउंदा है, कोई लंगर वरताउंदा है, कोई किते सेवा कर, जिन्हों आवाज़ सुनी भज के सब आ गए। लंबी कतार तो मोहरे होण लग पे। महाराज मेरे उत्ते निशाना परखो, महाराज मेरे उत्ते गोली चलाओ। डल्ला ते उहदे सूरवीर हैरान हो गए। कोई सिख कहंदा, महाराज पहला आवाज़ मैं सुनी है, महाराज मेरा बनदा, मेरे उत्ते निशाना लाओ। डल्ला ते उहदे सूरवीर योधे पसीने नाल चेहरा भिजया हैरान होए, शिंदे शिथे पै गए, शर्मिंदे पै गए। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने हुण डल्ले नूं कहा, दस बई सूरवीर कौन है? तू है, तेरे योधे ने कि मेरे सिख सूरवीर ने? डल्ला हथ जोड़ के खलो गया। महाराज तुहाडे सिखां दी सूरवीरता तो बलिहार। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहते भाई ये सूरवीर पता क्यों ने? इन्हीं अंदरों आत्मा नूं जित्तिया होया है, बाहरों शरीर नहीं कल्ले पाले होए। इन्हीं अंदरों आत्मा नूं बलवान कीता है, कल्ले शरीर बलवान नहीं, इन्होंने आत्मा नूं बलवान कीता है। ते आत्मा गुरु दे शब्द तो बगैर कदे बलवान नहीं हुंदी। उत्थे महाराज ने फिर बचन कहे, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कैयत है सूरा, आत्म जिणे सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। भाई ये पूरे सतगुरु दे हो गए, इसलिए अंदरों आत्मा बलवान है। अज महाराज ने बचन कहे, जिन्हां दी शब्द नाल आत्मा बलवान नहीं ना होई, वो आत्मा फिर जमा ने पकड़ के अगे ला लई। हथ मरोड़े तन कपे, स्याहो आसेत। वो आत्मा मरण तो डरन लग पई। उस आत्मा नूं जदों जमा ने आके पकड़िया तो कहते हैं, स्याहू हुआ सेत। वो चिट्टे तो काले फिर गए चेहरे, कालियां तो सफेद फिरन लग पे। तुसीं वेखोगे किन्ना भी साध संगत कोई बाहरी तौर पर खुराकां खाधियां होण बंदे ने, जदों आत्मा शरीर चों निकल जाती थोड़े घंटियां बाद चेहरा चिट्टा पैण लग पैंदा, जिन्हों पीला जा कहिंदे। कईयां दा चेहरा काला पैण लग पैंदा। सतगुरु कहते भाई शरीर तो इत्थे रह जाता। फिर अज महाराज ने कहा, जेहा बीजै सो लुणे। शरीर विच रहिंदिआं आत्मा ने जो बीजे ओनू वड्ढना पैंदा। कर्म संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। जिस तरह का किसी ने बीजिया उन्होंने कर्मां दा वड्ढना पैंदा। ये कर्मां दा सजिया होया खेत है। खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। साध संगत अपनी आत्मा हुण शरीर विच है। आपां घड़ी घंटा संगत विच बहिने, कथा कीर्तन सुनिया, बाणी पढ़ी, नितनेम कीता, ये कीता कर्म अपने नाल जाने। ये समा व्यर्थ नहीं जाएगा। जे आपां घड़ी घंटा बहिने आ, ये समा व्यर्थ जाण वाला नहीं। जिन्ने पल शरीर विच रहिंदिआं आत्मा ने सिमरिया वाहिगुरू वाहिगुरू, ये अंत वेले नाल जाएगा। सतगुरों बचन कहा, जिहड़े उस प्रभु की शरण विच गए, गुरु ने कृपा की, उन्होंने परमात्मा का नाम रूपी जहाज मिल गया। बोहित का अर्थ हुंदा जहाज।
प्रभु दे नाम रूपी चरण जहाज विच वो सवार हो गए। भाई वो फिर संसार दे दुखों विच नहीं डुबे, वो जमां दे वस नहीं पए। उन्होंने फिर साहब ने कहा से भादोए नरक ना पाई है, वो नरकों विच नहीं पए, वो कष्टों विच नहीं पए। गुर रखण वाला हेत, उन्होंने गुरु ने आप हेत करके प्यार दे के रख लिया। वो जन्म मरण तो मुक्त हो गए। उन्होंने अंदरों भरम दूर हो गया कि रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्त प्रीत भस्म संग होए। उन्हीं अरदास की अंधकूप में पतत विकराल, नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल। वो फिर प्रभु दयालु अगे उन्हें अरदास की, उन्होंने रब ने भरम विचों कढ़ लिया। वो दुविधा विच नहीं जीए, रब उत्ते एक विश्वास बनया। इसलिए अज दे शब्द की यह विचार है, अकाल पुरख रब उत्ते एक दृढ़ विश्वास रखना। जे दुविधा पैदा हो जाए, भरम पैदा हो जाए, जिमें दाने दे दो टोटे जमदे नहीं, जिमें किसी बीज दे दो टोटे कर दो वो उगदे नहीं, धरती वे सड़ जाते ने, इदा मन के अंदर एक रब ते विश्वास ना होवे, दृढ़ता ना होवे, वो धर्म अंदरों फलीभूत नहीं हुंदा। अकाल पुरख रब ते विश्वास रखिए, एक रब का नाम जपीए, जिन्हों साहब कहते साहिब मेरा एको है भाई एको है। उस अकाल पुरख रब का नाम जपीए, एक ते विश्वास रखिए, फिर ये सब कुछ होएगा कि से भादोए नरक ना पाईए, गुर रखण वाला हेत। एक गुरु ते विश्वास है, वो फिर नरकों में पैण नहीं दिंदा। ये गुरु की वडियाई है। आओ उस गुरु का ध्यान धर के 2 मिनट नाम जपीए, अपना मन एकाग्र करो, तां जो आपां भी संसार दे इन्हां झोरियां दुखों तो बच सकीए। नहीं तो बंदा फिर दोष दिंदा, महीना नहीं चंगा जी, अज दिन नहीं चंगा जी, ये साल ही चंगा नहीं है। सब कुछ चंगा है जे अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जपीए, उहदे ते भरोसा रखीए, फिर उहदे भाणे विच, उहदे हुक्म विच सब कुछ चंगा ही वरतदा है। आओ सतगुरु जी का ध्यान धर के एक बार सारे प्यार नाल मंग करिए। फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो सरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। आपां सतगुरु जी नूं हथ जोड़ के कहिए, सतगुरु सानू परिवार विच, संसार विच, कारोबार विच रहिंदिआं अपनी भगती नाल जोड़ो। परिवार विच रहिंदिआं, बच्चिआं विच रहिंदिआं सानू चित्ते आवे सतनाम श्री वाहिगुरू। सारे प्यार नाल जपो, अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी भगती, अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी। नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेन, नानक की प्रभ अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी। फिरत फिरत प्रभ आया, फिरत फिरत प्रभ आया, फिरत फिरत प्रभ आया, फिरत परिया तो सरणाए, अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी भगती लाए, अपनी भगती।
अपनी भगति लाए, अपनी भगति, अपनी भगति लाए। वाहिगुरु 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 नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ अपनी भगति लाए, अपनी भगति लाए, अपनी भगति लाए, अपनी लाए। सतगुरु किरपा करन तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।